So in this video we will cover the previous year questions asked in UPSC Civil Services Prelim examination of year 2021. So we will try to understand the kind of questions UPSC asked in prelim examination, and we already discussed the previous year question of geography for year 2020, 2024 and 2025. If you compare these questions, you can easily figure out that question asked in 2024 and 2025, there is clear difference between the pattern of question. So let's begin the video. First question is that black cotton soil of India has been formed due to the weathering of. ठीक है, देखो first we will try to understand what is the meaning of this black cotton soil, what they are. Black cotton soils are rich in nutrients. These soils are famous for their moisture retention capacity, and also by the name that these soils are important for the crops like cotton, sugarcane, and also known as Ragar soils. Okay, and these are also volcanic and rich clay rich soils, and these soils are rich in nutrients like lime, potash, magnesium, and etc. So by this understanding we can easily answer this question. The answer of this question is B. Now here is the explanation of this question. You can read from here, and I will upload these PDF of these PPTs on my Telegram channel by the name of M Manish. See, let me write it again. M_Manish 018. Okay, you can find me anywhere on the social media platform by this name M_Manish 018. Now move on to next question. How is permaculture farming different from the conventional chemical farming? So here two concepts are there, that is permaculture and conventional chemical farming. So what is the meaning of permaculture is that permaculture is related to the permanent agriculture, and conventional chemical farming are the methods of farming in which we use conventional chemical farming. By the name it suggests that it is related to chemical farming, right? We use chemicals in this method, right? And the permaculture, which means the permanent agriculture. This method is environment friendly. Water conservation, like rainwater harvesting harvesting done here, and we use the mulching is something that the residues of the agriculture put on the field so that the soil moisture will, जो soil का moisture है वो कम मतलब reduce नहीं होगा उससे, ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा दिनों तक soil moisture रह पाएगा. This could be two types, organic mulching could be of two type, organic and inorganic. Done from the plastic and other materials, and organic is done from the
the leaves, straw, and other organic residues of the agriculture. Now, first statement is that permaculture farming discourage monoculture practice, but conventional chemical farming monoculture practice are predominant. So this is the right statement, because the monocultural practices से क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है, जो सॉइल की जो कैपेसिटी है, जो फर्टिलिटी है, वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पर्माकल्चर इज समथिंग प्रमोट द एनवायरनमेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसको हम क्या करते हैं, इस फार्मिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट. सेकंड इज conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but occurrence of such phenomena is not observed in the permaculture farming. This is also right, because soil salinity will increase by using of conventional chemical farming, because in this farming method we are using the high yield variety seeds. ये क्या करेगी, because these seeds need more water एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी लूज होगी, सेलिनिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए राइट स्टेटमेंट. नाउ थर्ड इज कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट permaculture farming is not easily possible in such region. So this is wrong statement, because I already told you that this permaculture is a eco-friendly agriculture, and this can be done in the this can also done in the semi-arid regions. ठीक है, these both conventional chemical farming and permaculture both can be done in the semi-arid region. So this is wrong statement. Fourth statement is practice of mulching is very important in permaculture farming, but not necessary in the conventional chemical farming. So this is also right statement, as I already told you the meaning of the mulching. So our answer is 1, 2 and 4. Now these are the detail of the permaculture and advantage of the permaculture. So you can read this by the PDF. I will provide all the lectures PDF on my Telegram channel. Now the next question is, with reference to palm oil, consider the following statement. First statement is, the palm oil tree is native to Southeast Asia. So this is wrong statement, because palm oil trees are native of Africa. ठीक है, these are native of Africa. Second is, palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfume. So yes, this is right statement. Palm oil used in the cosmetic product and also in our cooking जो ऑयल होता है हमारा, उसमें भी ये palm oil यूज होता है. Third is, palm oil can be used to produce biodiesel. This is also right statement. So our answer here is B, 2 and 3 only. Move on to next question. With reference to Indus River system, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins Indus directly. Among the following, which one is river that join Indus directly? देखो, Indus river की लेफ्ट बैंक tributaries from north to south are Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas, and last is Satluj. Now the question is asking about these 4 rivers are given, one of them according to the constitution, according to what I am saying, according to the question 3 of them pour into one river. What is saying that in जो ये 4 रिवर्स दे रखी है, इसमें से एक रिवर में 3 रिवर्स आके मिलती है, एंड जो ये एक रिवर है वो किस में जाके मिल रही है, इन द इंडस रिवर. तो हमें क्या बताना है कि वो कौन सी रिवर है जो वहाँ मिल रही है. For example, this is the Indus River. If I arrange these rivers from north to south, Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj. Now these
ऑल रिवर्स आर मीटिंग एट टू द सतलज रिवर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, सतलज रिवर। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस कि कौन सी जो सारी रिवर्स है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये कौन सी रिवर में आके मिल रही है, एंड दैट सिंगल रिवर जॉइन टू द इंडस रिवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलज रिवर, ठीक है। दीज आर सम डिटेल्स ऑफ द रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to India, Didwana, Kuchavan, Sargol and Khatu are the name of saline glacier, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, सुब्रन रेखा एंड वमसाधारा रिवर, ठीक है। विच ऑफ द अबो रिवर राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। देखो जो ब्राह्मणी रिवर है वो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, एंड दिस सुब्रन रेखा रिवर इज ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो हम फर्स्ट और थर्ड को हटाएं तो उसमें से क्या बचेगा, ओनली 2 and 4। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नागा वैली एंड वंशधारा रिवर। दीज टू रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लीस्ट वाटर एफिशिएंट, विच मीन्स कोई भी जो क्रॉप है वो क्या है, वाटर को कम एफिशिएंटली यूज कर रही है, विच मीन्स वो कौन सी, उसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो। तो इसमें से कौन सी है वाटर इंटेंसिव कंपेयर टू ऑल 4, ये है शुगर केन, ए। देखो शुगर केन जो ब्राजील है वो शुगर केन का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया इज ऑन द सेकंड पोजीशन। एंड इन इंडिया महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, राइट। इसका यूज़ शुगर केन का यूज़ शुगर और अदर जो भी जैगरी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर दिस सॉइल इज अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द शुगर केन। आप और डिटेल यहाँ इसमें पढ़ लेना इसकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो वेस्टर्न सेक्शन है किसका, ओशंस का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस एज द ओशन एंड दिस इज द इक्वेटर, यहाँ से क्या होगा, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्लीज जो वाटर इधर फ्लो कर रहा है, बिकॉज इक्वेटर पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंसोलेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई होगा, और ये इधर मूव कर रही है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। जो ओशियनिक वाटर है इन फॉर्म ऑफ ओशियन करंट्स वो मूव कर रहा है टू द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द ओशियन। तो क्या हो जाएगा उसमें, जो वार्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड इज इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो ये भी क्या है, राइट स्टेटमेंट्स। और आंसर इज both 1 and 2 are correct. Now next question is leaf litter decompose faster in any other biome. biome का मतलब क्या होता है, largest जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ऑन दी अर्थ। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ द बायोम। And as a result the soil surface often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed plant form that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes. Epiphytes क्या होते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
एपिफाइट्स रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री। कहाँ पे होते हैं ये? जो बड़ी ट्रीज होती है उनकी ब्रांचेस पे ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो देखो ये तो किसकी है स्पेसिफिकेशन अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होती है। कहाँ पे? इन द इक्वेटोरियल, अराउंड द इक्वेटोरियल रीजन्स। और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर, डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या होता है? फास्ट होता है, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए सुटेबल कंडीशंस है ये, हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर। सो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अच्छा, ये देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऊपर रह गए शायद, सो वो भी हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है? ये देखो, हाँ ये देखो, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, ठीक है? दिस इज अबाउट द सवाना। जो सवाना में क्या है? ग्रास लैंड होते हैं, एंड सवाना कैसा बायोम है? ग्रास लैंड बायोम। और इसमें कुछ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। ये ऐसे बोल रहा है कि सवाना ग्रासलैंड में कुछ ट्रीज होते हैं, एंड ऑलमोस्ट उसमें ग्रासलैंड होती है बट सम ट्रीज होते हैं, ठीक है? द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज जनरली केप्ट चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ऐसा क्यों? मतलब ये जो 5 कंडीशंस दे रखी है, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो किसको प्रिवेंट कर रही है वहाँ पे ट्रीज के डेवलपमेंट को, वहाँ फॉरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? तो इसमें क्या हो जाएगा? फायर, ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल। देखो सीजनल रेनफॉल क्या होगी? जब कंटिन्यूसली रेनफॉल नहीं होंगे तो नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन, मतलब जो फॉरेस्ट की तरह ट्रीज यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? एंड ये हर्बीवोर्स ये क्या करेंगे? जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको खा जाएंगे, तो वो जो प्लांट्स है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे जो ट्रीज में, ठीक है? फायर विल ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 2, 3 एंड 4। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लेना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वाटर ऑन अर्थ, प्लेनेट अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये आप एक बार इस टेबल को देखो, फिर उसका आंसर करते हैं, ठीक है? फ्रेश वाटर, सबसे ज़्यादा जो वाटर का परसेंटेज है वो कहाँ पे? इन द ओशियंस। फिर है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर अराउंड 2%, ग्राउंड वाटर इज अबाउट 0.6 to 0.7%, सरफेस वाटर है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स लेक्स, ठीक है, 0.01%, एटमॉस्फेरिक वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड, एंड बायोलॉजिकल वाटर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ इसमें? ओशियन, फिर आइस आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, फिर ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, और सबसे लास्ट में क्या? बायोलॉजिकल वाटर। अब इसको देखो क्वेश्चन को, the amount of water in the rivers and lake is more than the amount of ground water। और देखो इस पे जो ये बोल रहा है, जो लेक्स और रिवर्स है उसमें ग्राउंड वाटर से ज़्यादा वो है, तो ये तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि ग्राउंड वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू दी सरफेस वाटर। सो फर्स्ट तो यहाँ क्या होगा? रॉन्ग। सेकंड है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट, ठीक? तो आंसर इज बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार आप पढ़ लेना जो भी डिटेल्स है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेग्यूमिनियस एवरग्रीन ट्री, ठीक है? सेकंड इज द टेमारिंड ट्री, ये क्या है? सॉरी, टेमारिंड इज इमली जो होती है उसको हिंदी में वो सॉरी इंग्लिश में बोल रहे हैं इसे, एंडेमिक टू साउथ एशिया, ठीक है? ये एंडेमिक है साउथ एशिया एंड अफ्रीका में। थर्ड इज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमारिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फोर्थ इज इंडिया एक्सपोर्ट टेमारिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, सीड्स ऑफ मोरिंगा टेमारिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लेना एक बार। तो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए फॉर द ईयर 2021 ऑफ द ज्योग्राफी। सम क्वेश्चंस इसमें हमने ऐड किए हैं ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो अभी तक बाय नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, PYQ सीरीज में हमने 2020, 2021, 2024 एंड 2025, ठीक है, ये 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड। अब रिमेनिंग है 2022 and 2023. We will also cover these questions in our upcoming video lectures.